So now we are starting the class. The class is for judicial services for the subject law, and the class will be for all the state services. Majority of the acts, 80% of the acts and the syllabus of the all the judicial examinations are same, but it differs slightly state to state. On that issue, we're having the extra class when examination of that state comes. Like recently, in the month of June or July, we have the examination of Rajasthan. The main syllabus is identical for all the examinations, and certain acts are different in the Rajasthan PCSJ. For that, we're having the separate classes. One thing. So these classes will be for judicial services covering all the state examinations of the country. Majority of the act are same, and whatever there is difference, we'll have separate classes for them on Saturday or Sunday. And the classes will be from Monday to Friday from 8 to 9:30. One aspect. We'll be covering each and every act, that is constitutional law, Indian Penal Code, Indian Evidence Act, CRPC, contract, and all major and minor acts. Now, Indian Penal Code, CRPC, and Evidence Act. As you all know, new act have been passed by the Parliament, which will be effective from 1st July. So we will be starting the new acts, जो हमारे नए अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जो आपका CRPC का नया एक्ट है, IPC का नया एक्ट है. We'll study the new act and where they differ with the old act and what is extra in the new act, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे. But now you will have to focus on the new acts. So we'll be covering each and every act in detail: constitutional law, contract, IPC, CRPC, evidence, and all other acts. Plus separate classes for those acts which are different in the state services, whether it is PCSJ of UP, whether it is of Rajasthan, whether it is of Delhi, Bihar, Jharkhand, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, or elsewhere. This is one aspect of the matter. Second aspect is judicial services examinations of each state has an exclusive paper on general studies in the preliminary examination and the mains also. General studies we will not be discussing in detail. जनरल स्टडीज केवल हार्डली 10 मिनट्स डेली, जो 10 मिनट हम लोग क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, जो आप एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली. बाकी जनरल स्टडीज कैसे आपको करना है जुडिशियल एग्जामिनेशन वो अलग डिस्कस करेंगे आपको से. जे आपको कैसे तैयार करना है जीएस एग्जाम का. लेकिन कुछ चीजें ऐसी आप देखेंगे ट्रेंड आ गया हर एग्जाम का. लेटेस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो. लेटेस्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो ऑन द डेली बेसिस जो भी आपके उस दिन का डेली न्यूज होगा, इश्यू होगा, उसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, दैट आई विल डिस्कस विद यू ऑन द सेम वेरी डे. ट्रेडिशनल पार्ट जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो आप अलग से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो आपको बताऊंगा मैं. लेकिन अगर 100 सवाल जनरल स्टडीज में आना है प्रीलिम्स में, तो 100 में से 80 सवाल जो हम लोग करेंगे उसी में से आएगा. बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग द लेटेस्ट जो एग्जाम में आता है, whether it is current affairs, whether it is polity, whether it is science, whether it is environmental issues, geographical issues, social issues, वो सारी बातें.
तो वो एक पार्ट फीचर रहेगा हम लोगों की क्लास का. These will be the law classes, but every day we will have 10 minutes for general studies, in which I will tell you which questions or aspects that can be asked in the examination. वो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये सबक कवर होता चलेगा. थर्ड एस्पेक्ट, अगर कोई लीगल इशू आज की तारीख में विच इज रेलिवेंट, चाहे वो आईपीसी का हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हो, एविडेंस का अगर चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है या कोई इशू सामने आया उसको लेकर, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट वेरी डे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई केजरीवाल इज इन जेल? बिकॉज केजरीवाल डिडंट फॉलो द directions of the lower court, which was only a procedural matter each and every time when someone was being issued, but he was not presenting himself. So that is a legal issue which he has challenged. Who is right, who is wrong, हमको तो मतलब नहीं रहेगा. We are not discussing that. But what is the legal issue? We will discuss that. कि why Mr. Kejriwal has been sent to jail and what are his contentions before the court कि उनका अरेस्ट जो है इलीगल है. That is a legal issue. तो वो आपके एग्जाम में भी आएगा, प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हमेशा जो लीगल इश्यूज लेटेस्ट चलता है उसका एग्जाम्पल देना चाहिए अपने आंसर में. देन विल गेट फुल मार्क्स. मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं अगर आप डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट केसेस डिस्कस करते हैं, दैट हेल्प्स यू इन स्कोरिंग मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशन. और डायरेक्टली सवाल भी आता है प्रीलिम्स में. तो हमारे क्लास का 3 एस्पेक्ट रहे. विल बी डिस्कसिंग द हैविंग द क्लास अंडर 3 हेड्स, स्पेसिफिक 3 फीचर्स. फर्स्ट, लॉ क्लासेस. सेकेंड, for general studies, what will be those topics which are relevant, which are in the news and can take shape of a question in your examination, वो हम डिस्कस कर लेंगे. कोई जोग्राफिकल इश्यू मान लीजिए हुआ है, कोई इकोनॉमिक इश्यू हुआ है, कोई पॉलिटी का इश्यू हुआ है, कोई साइंस का, कोई एनवायरमेंटल का, एग्जाम में आता है, वी डिस्कस. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन that will be asked in the general studies examination, वो हम लोग कवर कर लेंगे. थर्ड एस्पेक्ट, जो लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लीगल इश्यूज होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो लीगल केसेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस होंगे, वी विल डिस्कस दोस इश्यूज. जैसे इस समय आपको कायदे से जो इलेक्शन चल रहा है, यू मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द इलेक्शंस. You know, India is a democratic country, and a democracy, people are the ruler. जनता ही अपना शासक होती है. And quality of elections decides the quality of government, and quality of government decides the quality of governance. So that is one aspect. Second, what are the rules and regulations related with the elections? लोकसभा में इलेक्शंस कब होते हैं, किस आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किस में इलेक्शंस में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें रिट फाइल करते हैं, जो भी चीजें हैं. तो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड विद द इलेक्शंस, वो आपको पता होना चाहिए. लोकसभा के इलेक्शंस का, राज्यसभा के इलेक्शंस का, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस का, स्टेट काउंसिल्स, राज्य विधान परिषद के इलेक्शंस का, फिर पंचायतों के इलेक्शंस का, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस का, कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या उसके पावर्स हैं, कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस का फॉर्म लेते हैं. और 3 से 4 सवाल आपके हर एग्जाम में इलेक्शंस के रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर आएगा. तो जब ये टॉपिक्स आप इस ढंग से करते हैं तब जाके एग्जाम में अच्छा करते हैं. एक लाइन से रट के एग्जाम में कुछ नहीं होता है. तो ये हम लोगों का क्लास का फीचर रहेगा. बिकॉज जो बुक्स में है वो तो सभी लोग पढ़ ले रहे हैं,
लेकिन बुक्स में भी क्या पढ़ना है यू कैन नॉट विजुअलाइज। तो वो आपको इंसाइट इन्हीं सब चीजों से मिलता है व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड यू। उन इश्यूज को अपने एग्जामिनेशन, अपने सिलेबस, अपने क्वेश्चंस के अनुसार गेस करके, इसलिए आप देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ते सिलेक्शन पा जाते हैं बिकॉज दे हैव अ स्ट्रेटेजी, और वो चीजों को पकड़ लेते हैं कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आने एंड दे प्रिपेयर ऑन दैट। वो हम लोग एस्पेक्ट करेंगे जहां पर मैं आपकी ज्यादा अच्छी मदद कर पाऊंगा। व्हाट इज देयर इन आईपीसी, व्हाट इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज देयर इन एविडेंस, ये तो आपके पास किताब भी है, आपके पास बेयर एक्ट भी, एक लाइन सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या एग्जामिनेशन में प्रश्न आने वाला है एंड हाउ टू आंसर बेटर, वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक्ट भी हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन वो अपने आप किताब में आप भी पढ़ सकते हैं। रिफाइनमेंट और क्या चीज एग्जामिनेशन है वो मैं आपको हेल्प करूंगा। अब इशू ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। आर्टिकल 39B का नाम सुना आप लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39B। अभी एक लेटेस्ट इशू देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एंड 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, 9 जजेस की बड़ी बेंच मानी जाती है कि वेदर एन इनकम और अ प्रॉपर्टी developed or generated by an individual person, private person, can form the part of material resources of the country for general public। ये इशू है, अर्थात किसी एक निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अगर कोई संपत्ति बनाई गई है, कोई डेवलपमेंट किया गया है, तो क्या वो सार्वजनिक संसाधन की कैटेगरी में आएगा, ये इशू है। जैसे मानिए कि अंबानी है, अंबानी ने कोई डैम बना दिया बड़ा सा, उससे बिजली पैदा हो रही है, प्राइवेटली बनाया है, प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन क्या वो मटेरियल रिसोर्सेज माना जाएगा फॉर द कम्युनिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू चल रहा है, आपका सवाल आना है एग्जामिनेशंस में, फुल क्वेश्चन भी आना है प्लस प्लेस में भी आना है। इसमें आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B को बेसिस बनाया है कोर्ट ने, उसके आधार पर इस पर आंसर आना है। तो आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C ये दो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 39B और C के आधार पर ही मिनर्वा मिल केस डिसाइड हुआ है that there should be a harmonious construction and balance between the fundamental right directive principles। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में एक सामंजस्य होना चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर ज्यादा नहीं है। तो केवल 39B और C को बात, वो मिनर्वा मिल केस भी इसी के ऊपर है। तो सेम इशू इस समय आपका, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। Can a property generated or developed by a private person can become the part of a community resources। निजी व्यक्ति द्वारा बनाई गई संपत्ति, विकसित की गई संपत्ति, क्या वह सार्वजनिक संसाधन का रूप ले सकती है? कमेंट, वो आर्टिकल 39B पहली चीज। अगर सवाल आता है कि जो अक्सर आता है एग्जामिनेशंस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आप सवाल लिखते हैं किशन भारती केस, मिनर्वा मिल केस। अब उसकी चर्चा करने में, इस्ट का अगर चर्चा करेंगे आप पर्टिकुलर इशू का, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। एक टॉपिक आपका ये है। दूसरा आपने मीटी, MEMIETI, मीठी कम्युनिटी और कुकी जो कम्युनिटी का नाम सुना है?
कोई हाथ खड़ा करे अपना। इन ट्राइब्स का नाम सुना आपने? अभी एग्जाम्स में आना आपके, कुकी ट्राइब एंड मीकी ट्राइब, MEIKI। अपना हाथ रेज करे अगर किसी ने सुना है तो। लास्ट 1 ईयर से बहुत बड़ा इशू बना हुआ है देश में। तो मीकी जो कम्युनिटी है दैट इज, वो मणिपुर में। हाँ बताइए, बताइए नीश। हाँ बताइए भास्कर, भास्कर बताइए। यस सर, ये मणिपुर में एक मुद्दा चल रहा था दो जनजातियों के बीच में। तो मीकी ट्राइब्स कहाँ की है और कुकी ट्राइब्स कहाँ की हैं? क्या सर लोकेशन इनका? सर ये झारखंड के पास थी, नागा थी और कुकी। ये दोनों ट्राइब्स आपकी जो हैं, ये बेसिकली मणिपुर की हैं। मणिपुर के पहाड़ियों में जो हिल्स में रहते हैं, पहाड़ों में, वो कुकी यस, ट्राइब्स हैं। और जो वैली, यस सर। वो रहते हैं वैली में, वो मणिपुर की वैलीज में, उनको बोलते हैं आप मीकी ट्राइब्स। तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो मीकी ट्राइब्स हैं दे शुड बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तब जाके आपका डिस्प्यूट सुलह विवाद शुरू हुआ। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन कहां पर है? शेड्यूल्ड के ट्राइब को कौन डिफाइन कर सकता है? ये सारे इश्यूज आपके लीगल इश्यूज हैं। तो ये सारी बातें आज के अखबारों में है, ये तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। प्लस क्लाइमेट चेंज को लेकर, और एक स्पेक्ट्रम, जो 2G स्पेक्ट्रम का इशू हुआ था, उसको लेकर, जो स्पेक्ट्रम होता है जिससे कि आपका ये पूरा नेट सिस्टम चलता है, क्या बिना ऑक्शन के दिया जा सकता है लोगों को? तो ये इशू आपके सारे अखबारों में, सब लीगल इश्यूज हैं सब ये। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छा करना है तो आपको जो लेटेस्ट लीगल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो हम लोग की क्लास रहेगी, उसका जो सिस्टम रहेगा, वी विल डिस्कस एंड स्टडी लॉ। सेकेंडली, we will discuss and study important issues and topics for the purpose of general studies. It will take hardly 10 minutes per day, लेकिन वो चीज आपको उसी दिन याद हो जाएगी। जैसे इस बार हमारी आपकी बैडमिंटन टीम कहां पर वर्ल्ड कप खेलने गई है और वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में है, तो वो आज ही आप कर लेंगे तो वो चीज याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन के समय आप एक साथ 50 ट्रॉफीज, कौन जीता कौन हारा क्या हो, तो याद वाद नहीं रहता फिर। तो हार्डली विल बी गिविंग 10 मिनट्स टू द जनरल स्टडीज डेली। जो आपके करंट अफेयर्स मीन्स करंट साइंस, करंट एनवायरनमेंट, करंट पॉलिटी, करंट इकोनॉमी, ये सब कवर करेगा आपका। केवल आपको ट्रेडिशनल सवाल हिस्ट्री ज्योग्राफी का पढ़ना रहेगा, रेस्ट विल कवर इन द क्लास। ट्रेडिशनल के लिए भी वी विल डिस्कस वन डे कि जीएस कैसे करना है। जुडिशियल एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए जीएस की तैयारी एकदम अलग है, क्योंकि वहां चारों पेपर जनरल स्टडीज का ही होता है, तो उसकी तैयारी का स्तर या डिफरेंस होगा आपका, इसमें जुडिशरी में नहीं। जुडिशरी में तो आपको कम समय खर्च करके ज्यादा मार्क्स लेना है। योर मोर फोकस हैज टू बी ऑन लॉ। थर्ड एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया, लेटेस्ट लीगल इश्यूज, लेटेस्ट इश्यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल लीगल इश्यूज, ये सारी बात है। तो तीन पार्ट में हम करेंगे, और जो भी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो आपका रफ बनेगा, लिखते जाएंगे आप। अभी हम लोग ब्लैक बोर्ड भी यूज करेंगे तो और चीज समझ में आपको आएंगी। फिर जाके आपका सेम डे आपको अपनी कॉपी में आपको फेयर कर लेना है लॉ का, अगर एविडेंस पढ़ रहा है तो एविडेंस की कॉपी उसमें फेयर कर लिया। जीएस जो आपने पढ़ा, तुरंत जीएस वाली कॉपी में जाके फेयर करके लिख लीजिए उसको। कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो चैट में लिख दीजिए, नेक्स्ट डे डिस्कस हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपका हम बनाएंगे, उसमें आप क्वेश्चन अपना भेज दीजिए, तो मैं नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि देखिए इस टाइप पर ऐसे ऐसे आएगा। आप नेट खोलेंगे, हार्डली एक पैराग्राफ होगा, पढ़ने से बात क्लियर हो जाएगी।
और थर्ड आपका जो ये, फिर तीसरी कॉपी जो लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल लीगल इश्यूज का है, ये 3 कॉपियां बना के चलिए। और क्लास के तुरंत बाद पहला काम उसको फेयर करिए, तब जाके सोइए, तब तो आपको क्लास का फायदा मिलेगा। क्लास हम लोग केवल कोर्स खत्म करने की दृष्टि से नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी सम वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज, वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशन। अगर आप अपने आप पढ़ाई करते हैं तो आप 100 नंबर ले आ पाते, तो क्लास भी कर लेंगे तो 100 में 50 नंबर आपका और ऐड हो जाएगा। आपका तो अपना 100 नंबर आना ही आना है, प्लस 50 मार्क्स ऐड होना है। और आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन होता है कॉम्पिटिशन्स में, अगर 600 मार्क्स का है और मेरिट अगर 4, इस बात को ध्यान से समझिए और इस बात को अपने दिमाग में डालिए, एकदम इसको दिमाग में डाल लीजिए। 600 मार्क्स का अगर आपका पेपर है और 400 मेरिट जा रही है सिलेक्शन की, तो 400 में से 350 मार्क्स तो आप अगर लास्ट में 1 महीना पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन 350 से लेकर जो 450 मार्क्स है, 50 मार्क्स, 350 से हम 400 कैसे पहुंचे? इसी 50 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत है। अब रात दिन पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करेंगे, टीचर डिस्कस करेंगे, तब जाके वो 50 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो इस 50 मार्क्स को बढ़ाने में मैं आपकी मदद करूंगा। आप क्लास मत करिए, लास्ट 1 महीने पढ़े, तब भी आपको 350 मार्क्स आ जाएंगे। बट 350 से 400 पढ़ने में आपको काफी स्ट्रैटेजी, मेहनत, गाइडेंस सब चाहिए होगा इस 50 मार्क्स के लिए। तो जो हम क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और उसका आप फेयर इमीडिएटली जाके नहीं करेंगे, तो क्लास का आपको बहुत बड़ा यूज आपके लिए नहीं रहेगा। क्योंकि ये वैल्यू एडिशन के लिए हम क्लास कर रहे हैं, आपका कोर्स खत्म करने के लिए नहीं। कोर्स तो अपने आप भी आप तैयारी करिए, खत्म हो जाएगा, आप हर चीज जान जाएंगे। तो डेली बेसिस पर अगर ये काम आप करते हैं, देन क्लास लेने में और क्लास का आपको फायदा मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अभी जैसे इंटरेक्शन कैसे होना हमारा आपके बीच में इमीडिएट वाला, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते थे, इमीडिएटली आप अपना अनम्यूट करके क्लास हम लोग कर ले, अपना क्वेश्चन आप पूछ लेते थे। इसमें वो फीचर अभी डालने का प्रयास कर रहे हैं, इमीडिएटली अपना अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। अभी क्या है, मैं बोलूंगा अपना हाथ आप खड़ा करेंगे, मैं आपको ओके करूंगा, तब आप सवाल पूछ पाएंगे। लैपटॉप पे तो ठीक है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जब करेंगे तब ऐसा संभव नहीं रहेगा। तो दैट विल बी सॉर्टेड आउट इमीडिएटली सून। अभी जो हम लोग को स्टार्ट करना है, विल बी स्टार्टिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल one aspect what has been new to this act? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसमें कौन सी एक ऐसी नई बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है? कोई हाथ खड़ा करके बताए। जस्ट वन एस्पेक्ट। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो कि रिप्लेस करेगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को 1 जुलाई 2024 से आपका ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है विच इज न्यू टू दिस अधिनियम इन कंपैरिजन टू द एविडेंस एक्ट 1872, कोई भी हाथ खड़ा करके बताए। आकृति, भास्कर, इनिश, प्रीति, कोई भी आप में से। किसी को नहीं मालूम है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि नहीं है? डिजिटल रिकॉर्ड्स एविडेंस है कि नहीं है? डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल एटसेट्रा, क्या ये एविडेंस है कि नहीं है? आप देख रहे हैं कि जो क्राइम का रेट है, पहले क्राइम का मोड दूसरा हुआ करता था। अब जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्राइम क्या होता है? क्राइम अगेंस्ट बॉडी एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 2 प्रकार के क्राइम होते हैं।
शरीर के विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप जान ही रहे हैं, सब का सब जो है इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड। अब बनाना है कागज पत्थर या कब्जा करना नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। और आप देख रहे हैं कुछ दिनों बाद क्राइम अगेंस्ट बॉडी, आपके शरीर के विरुद्ध भी क्राइम जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट मर्डर करेंगे, हत्याएं रोबोट द्वारा कराई जाएंगी। आप देख रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल आजकल रोबोट करते हैं। अगर आपने नो टीवी देखते होंगे तो जो वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम का हाल, जो लेडी आके आपके टीवी स्क्रीन पर बताती है, वो रोबोट है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नाउ द नेचर ऑफ क्राइम है चेंज्ड। जब नेचर ऑफ क्राइम है चेंज्ड तो उसको कंट्रोल करने का तरीका भी परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सीआरपीसी में एविडेंस में अल्टीमेटली ट्रायल चलता है और सिद्ध किया जाता है कि वेदर दिस पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो क्राइम का नेचर चेंज हो गया है, तो एविडेंस का नेचर भी डिफरेंट हो गया है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मोड अलग हो चुका है। एविडेंस कैसे एकत्रित करना, उसका तरीका बदल गया है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस का नेचर बदल गया है। तो है किसी को आइडिया, किसी ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में अभी तक? व्हाट इज एविडेंस? अभी केवल हम क्लास स्टार्ट नहीं किया, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग सिस्टमेटिकली क्लास स्टार्ट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाट यू हैव ग्रास्प्ड, अभी आप तक क्या जानकारी आप लोगों को है। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस कहां डिफाइंड है? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एविडेंस की परिभाषा कहीं पर नहीं है। नए एक्ट में जो आपका सेक्शन 2E है शायद, एविडेंस, वो बताता है कि एविडेंस क्या है। तो वो ओरल एविडेंस की बात कर रहा है। एवरी टाइप ऑफ स्टेटमेंट including statements given through electronic media, through electronic records, digitally, ये ऐड हो गया आपका। बयान आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देख रहे हो कि कैदी जेल में रहते हैं, वहां से बयान लेता है कोर्ट। तो ओरल स्टेटमेंट, एविडेंस के डेफिनेशन नहीं बताया है। एविडेंस कितने टाइप का होता है वो बताया कि होता है ओरल एविडेंस, एवरी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एवरी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ गया। तो सेक्शन 2 की जो ई में डेफिनेशन है एविडेंस के बारे में दिया है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, वो चीज। तो किस प्रकार से एविडेंस एडमिसिबल होगा? कोई भी एविडेंस आपका एडमिसिबल नहीं होता है। कोई भी आपने कोई बात कही वो तुरंत कोर्ट नहीं मान लेगा, रेलिवेंट नहीं माना जाएगा वो। तो इसका डिटेल्स सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 63 तक। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ओरल एविडेंस में भी आ गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी आ गया है, प्लस कैसे रेलिवेंसी इसकी होगी, कैसे इसको कोर्ट में दिया जाएगा, सब ये सेक्शन 61 से लेकर 63 तक है एविडेंस, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। और किस फॉर्मेट में, किस रूप में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना कि एविडेंस पेश करने का तरीका होता है, तो उसके लिए एक नया शेड्यूल बना हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नया शेड्यूल बना है जिसमें 2 सर्टिफिकेट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देने वाला व्यक्ति बकायदा लिखेगा कि मैं ये एविडेंस मैंने डीवीडी, व्हाट्सएप या जीमेल इससे पाया है, ऐसे ऐसे, वो सर्टिफिकेट देगा। फिर एक एक्सपर्ट भी सर्टिफिकेट देगा, पार्ट बी, कि हाँ ये जो एविडेंस है इसका सोर्स ये है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो सेक्शन 2E, सेक्शन 61 to 63 और ये शेड्यूल्स, ये 3 चीजें पढ़ेंगे तो आपको एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सब एविडेंस एक्ट में लॉ की भाषा में या कैसे कोर्ट में देने के जाए हैं, क्या परिभाषा है, वो सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। एक सवाल आपको इस पर आ, इस ढंग से बातों को आप पढ़ेंगे तो आपको एविडेंस एक्ट क्लियर है। कोई भी एक्ट, कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उस एक्ट को स्टार्ट करेंगे, ये नहीं सेक्शन 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे नहीं। सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन 1 में अगर कोई टॉपिक दिया है, कोई इशू दिया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज पूरे एक्ट में हैं सब एक साथ ही करेंगे। तो सेक्शन 2E, सेक्शन 61, 62, 63 और शेड्यूल, ये सब एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में एक साथ आएगा, तब आपकी आंसरिंग वो अच्छी होगी। तो ये सारी बात है। क्लियर है बातें ये? और क्लास आपके मंडे टू फ्राइडे 8 to 9:30 चलेगी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। वो स्टेट एग्जामिनेशन आएगा तो उसके अनुसार जो उसका एक्स्ट्रा जो उसमें एक्ट्स आए हैं वो हम इन टाइम पीरियड के अलावा सैटरडे संडे को किया करेंगे कभी कभी। तो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द क्लासेस एंड इस ऐप के थ्रू आपका होगा। अब पहले तो क्योंकि इसमें कई लोग थोड़ा सा 2-3 नए हैं, कई लोग अभी आए नहीं है, अभी आप एक एक करके हाथ अपना हैंड रेज करके बताइए कि इस ऐप के जरिए जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आकृति, आकृति अपना हाथ रेज करके बताइए कि जो हम लोग डिस्कस, हम बताइए प्रीति, बताइए बताइए, हाँ बताइए आकृति, बोलिए कोई, आप लोग बोल नहीं रहे कोई। सर हैंड रेज करने पे क्या? हाँ बोलिए, सर चीजें समझ में आ रही हैं। मतलब क्लियर वॉइस, सारी बातें साफ साफ आ जा रही हैं। यस सर। ओके, बाकी आपने जो नया साक्ष्य अधिनियम पढ़ा उसको नहीं पढ़ा, नए वाले को अभी नहीं सर। अभी टच नहीं किया है। हम बताइए आप, इसमें आपको जो रिकॉर्डेड जो वीडियोज वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगे बट फॉर द लिमिटेड डेज। बताइए प्रियंका, बताइए आप। इंटरैक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। हाँ बताइए इनिश, इनिश आपकी आवाज नहीं क्लियर है। बाकी प्रीति आप बताओ, हाथ रेज करेंगे तब मैं टिक करूंगा तब आप बता पाएंगे। यू हैव टू रेज योर हैंड। भास्कर आप बताइए। हाँ बताइए। जी सर क्लियर है सर। ओके, हाँ बताइए। प्रियंका आप बताइए। Yes, sir. Everything is clear, sir. ओके, राकेश। हाँ भास्कर जी। यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, राकेश।
Yes, sir. Hello, can you listen to me, sir? यस यस, इंटरैक्टिव क्लासेस थोड़ा सा जी जी. स्मूथली इंटरेक्शन हो। Yes, sir. क्लास में जो है अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इमीडिएटली स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा कर सके और तुरंत सवाल पूछ ले। हाँ सर, इसके लिए डेवलपर से भी बात करी है। उन्होंने कहा था इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि दे कैन फ्रॉम देयर साइड दे कैन अनम्यूट एंड दे कैन टेक द आस्क द क्वेश्चन सर। व्हाट, तो फिर से ये बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ सर, ऐप डेवलपर से बात करी है सर कि जो स्टूडेंट्स अपने साइड से अनम्यूट करके हाँ क्वेश्चन हाँ पूछ सकते। हाँ, मतलब जी ये जानकारी बोले इसमें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ना रहे कि पहले मैं हैंड का टिक करूं उसके बाद पूछा जाए। जी सर, जी सर, जी सर, इसका ठीक है, इसका मेथड जल्दी करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Rest is clear, sir. I think your network is also good, sir. हाँ हाँ, And yes, sir. अच्छा, क्लासेज अब रेगुलरली आपकी चलेगी 8 to 9:30 मंडे टू फ्राइडे। और हम लोग Okay, जो sir. है एविडेंस एक्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। विल स्टार्ट विद द एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट सबके पास है, या जो नया एक्ट है सब लोग अपना जो नया एक्ट है, सबसे पहले हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। हाँ, सारे बेयर एक्ट्स, हाँ बेयर न्यू एक्ट्स आप लोग ले लीजिए। हाँ बोलिए। सर, न्यू वाला एक्ट तो भी लिए नहीं है सर। लेना पड़ेगा ना, अब तो वही आएगा। आज गए थे सर पर मिला ही नहीं। अरे शॉप नया एक्ट लीजिए, उसको हम लोग जी पढ़ेंगे। पढ़ते समय क्या पुराने वाले से डिफरेंस है वो कंपैरिजन हम लोग करते हुए चलेंगे, लेकिन पढ़ना अब नया वाला ही पड़ेगा। जी और 1 जुलाई के बाद आपका ये नए वाले एक्ट्स लागू हो जाएंगे। जी 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 और जो भी क्राइम या जो भी चीजें इश्यूज होंगे 1 जुलाई के बाद, नया एक्ट उस पर लागू होगा। पुराने वाले जो है उसी के अनुसार चलेंगे। जी सर। ले लीजिए। और जो मैंने बताया आपको, 3 पार्ट में क्लास चलेगा डेली। फर्स्ट विल बी द 10 minutes which we will discuss the relevant and latest issues of that very day, जी सर। which will be relevant for your general studies and for your national international legal issues. Second part will be of law, और आपका तीनों पार्ट चलेगा। ये इधर से क्लास चलेगा। ऐसे आपको 3 कॉपियां बनाने पड़ेंगी, लॉ की अलग, जीएस की अलग, और लेटेस्ट लीगल इश्यूज की अलग। जी सर। और जो क्लास हो रहा है तो थोड़ा उस पर लिखने का प्रयास भी करिए। जैसे एक सवाल लिख लीजिए, तो आज लिखिए सब लोग। देखिए, जो नहीं लिख पाएगा वो हाथ हिलाएगा, हाथ रेस करेगा, अदरवाइज जो मैं बोलूंगा वो लिखना है आपको। लिखिए, हाउ एविडेंस in mode of electronic media and digital record has been incorporated in the new भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आंसर हिंदी में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल रिकॉर्ड को किस तरीके से साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, ये पढ़ के आ जाइएगा। खैर बेरेट खरीद कर पूरा पढ़ना शुरू करिए स्टार्टिंग से। हम लोग एविडेंस एक्ट पूरा स्टार्ट करेंगे कल से, बिगनिंग से। और दूसरा सवाल जो मैंने बताया था आपको, कैन एन इनकम और रिसोर्स डेवलप्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन can be included as material resource of the community? Comment in light of Article 39 Clause B of the Constitution of India. क्या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के सृजन या विकसित करने पर वह संपत्ति, वह आय
समुदाय की मानी जाएगी, समुदाय का संसाधन माना जाएगा। अनुच्छेद 39B के संदर्भ में इसकी व्याख्या करिए। इन 2 सवालों को लिखने का प्रयास करिएगा और एविडेंस एक्ट की पढ़ाई और एविडेंस एक्ट के बारे में आइएगा। हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 8 एविडेंस एक्ट से, और इन 2 क्वेश्चंस को लिख कर भी आइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम आप सबका बना देंगे, आप अपना आंसर लिख के PDF बना के उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी सकते हैं, प्राइवेटली भी मुझे भेज सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको चाहिए, जो क्वेरीज आपको चाहिए, वो यहाँ पर भी चैट बॉक्स में दे सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें भी चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और प्राइवेटली भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने आंसर्स लिखकर भेज सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मोड का पूरा का पूरा फायदा लीजिए। एक चीज, दूसरा जो हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट भी हम अपलोड कर देंगे आपका इसी पर, जो आपका ये ऐप है। कोई नोट्स वगैरह होंगे हम आपको अपलोड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी और इस ऐप पर भी। तो रेगुलरिटी बनाए रखेंगे डेली बेसिस पर, तो धीरे धीरे चीजें आपको। तो पहला हम लोग का टारगेट एग्जाम जो अगला राजस्थान PCS जे का है, और फिर उसके बाद हम लोग UP जे पर आ जाएंगे। तो इस ढंग से क्लास चलेगी, इस ढंग से चीजों को फॉलो करिए और फिर करते हैं 8 बजे। तो आज काफी लोग केवल एक इनिश टाइम से आया था, बाकी सब लोग काफी धीरे धीरे लेट आए हैं। बीच में एंटर करने पर दिक्कत है, जैसे क्लास बीच में डिस्टर्ब होती है तो आपको दिक्कत आती है, वैसे ही जब आप आते हैं लेट तो मुझको भी दिक्कत आती है। बताइए। सर इसकी नोटिफिकेशन सर बहुत हल्का सा रहता है सर, पता नहीं चलता, बस हल्का सा वाइब्रेशन होता है फोन में। क्या चीज पे समझे, क्या करें आप? सर क्लासेस की नोटिफिकेशन बहुत मतलब वाइब्रेशन सा हुआ है, बहुत माइनर सा था, पता नहीं चलता है सर। अच्छा, नोटिफिकेशन किस रूप में आता है? मैसेज के रूप में आता है, कैसे आता है? मतलब सर वाइब्रेट हुआ था सर, वाइब्रेशन हुआ था और नोटिफिकेशन बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन था, फिर वो गायब भी हो गया सर अच्छा, तुरंत। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है तो वो रहता है, दिख जाता है तुरंत। अच्छा। असल में इसलिए कि व्हाट्सएप पे करेंगे तो सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि डायरेक्ट पाएंगे तो सीधे मुझे केवल क्लास लेनी होगी, जी जी इसलिए ऐप। अदरवाइज जो आपका है ये गूगल मीट से तो अच्छा है ही, कोई जी सर, इंटरेक्शन भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें ये है कि सारा चीजें इजी हो गया है। जी सर, क्लास सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नोट्स आपको देना, सब चीज करना आसान हो जाएगा। केवल जो इंटरेक्शन वाला है। नहीं सर, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन मिस हो गई तो फिर हमें इसके वो जो ऐप हमने डाउनलोड किया वहां पे जाके करना होगा सर। एक दो बार देखेंगे तो समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। मतलब नोटिफिकेशन जैसे आया सर वो मिस हो गया तो फिर वो दिखता नहीं है फोन में कहीं भी। तो आप कहते हैं सीधे ऐप में डाउनलोड कर रखा है आपने? हाँ जी सर, ऐप है तो फिर उसके थ्रू कैसे जाना है फिर वो देखना पड़ेगा सर नेक्स्ट टाइम। एक दो बार करेंगे तो सर थोड़ा हैबिट फिर समझ में आएगा। ऐप कर लिया है तो लिंक से नहीं जा पा रहे हैं, जो लिंक भेजा है? नहीं, लिंक से हुआ है सर। लिंक आप तो वो नोटिफिकेशन जो आया उसी पे मैंने क्लिक किया तो तुरंत कनेक्ट हो गई क्लास। अच्छा, नहीं जो लिंक मैंने भेजा उससे connect क्लास स्टार्ट होने पर लिंक तो सर आपका नहीं दिखा, बस नोटिफिकेशन एक आई है तो उसी नोटिफिकेशन को मैंने ओके किया तो फिर उसमें कनेक्ट हो गया क्लास। वही कहना चाह रहे थे सर, मान लीजिए सर वो नोटिफिकेशन नहीं मतलब मिस हो जाती है तो फिर देखते हैं कि ऐप के थ्रू फिर जा सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। जो लिंक मैंने आपको कल भेजा था ना, नहीं सर, हाँ जी 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 जी, उसके कल थ्रू तो सर नहीं देख पाए थे, कल सर देख ही नहीं पाए थे। जरा उसके थ्रू एंटर करने की कोशिश करिएगा। आज तो सर उसी के थ्रू वो हुए हैं। अच्छा, वो नोटिफिकेशन दिखी है, फोन कॉल करने के लिए फोन लिए थे तो नोटिफिकेशन शो हुआ तो तुरंत उसको ओके कर दिया सर, तो कनेक्ट हो गई क्लास। चलिए उसको फिर मैं आपको बोल देता हूँ उनको, जी क्लियर हो सर, जाएगा ये। तो कल से फिर आप लोग 8 बजे आ जाइए, डॉट 8 बजे आ जाइए, और ओके कल से सर, फिर हम लोग किसी का वेट नहीं करेंगे और क्लास आपके एविडेंस की स्टार्ट कर देंगे।
और जो दो सवाल मैंने लिखाए हैं उसको लिखने की कोशिश करिएगा और एविडेंस एक्ट के आने की शुरुआत करिएगा। थैंक यू सर। चलिए, ओके।